Hello everyone and good evening. I am really happy the way you are responding. You said that you like the tricks to remember period table. It's a very good thing for me, but I will suggest you to learn this period table as I told you in that manner, or you can do it anyway. But I told you what are the importance of this long form of period table. Now today we have discussed here electronic configuration of the elements. But before that, let me tell you, and you know that I think all these elements, they are classified into 4 blocks. So accordingly, here I told you the elements of first A and second A, they will come in S block. I told you all these transition elements, they will come in the D block. From group number 13 to group number 18, all these elements, they are called as a P block. And lanthanides and actinides, all they will be in F block. So block wise, if you see, we can classify the elements in this manner into 4 blocks. Now in this lecture we have to study now the general electronic configuration of these elements and group wise. If you see properly, I told you, see for example sodium is having atomic number 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Okay, I told you in the previous lecture, in the chapter structure of atom, how to write the electronic configuration. Yes, now you can see here 2 plus 2 is 4 plus 6 is 10 plus 1 is 11. Last electron enters in the 3s subshell. For hydrogen, if you write here hydrogen having atomic number 1, 1s1 will be the configuration. For lithium, if you see the 2s1 will be configuration. Same for sodium. And then for potassium, if you see it properly, potassium is having atomic number 19. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, then 4s1. If you count it properly, 2 plus 2 is 4, plus 6 10, plus 2 12, plus 6 18, plus 1 19. If you see, it's a 4s1. So obviously I will say here the general electronic configuration of the first A group element will be ns1. So here इनका यहाँ पे क्या आएगा, इनका आएगा ns1. If you see the electronic configuration of the second A group elements, अगर आप देखोगे सोडियम के बाद आएगा मैग्नीशियम, तो यहाँ पे आएगा 12, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा दूसरा मतलब 12 वाला, it will come in the 3s2. So they have the configuration ns2. So the elements of the first group, all they are having electronic configuration ns1, and the elements of second A group known as alkaline earth metals, their configuration is ns2. Now if you see it properly, अभी हम पहले बात करेंगे normal elements की, group number 1 to 2, then from group number 13 to 18 की बात करेंगे, और बाद में हम यहाँ पे देखेंगे क्या आता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन. अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एल्यूमिनियम की, you know that for aluminium atomic number is 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Yes, 2 plus 2 is 4, plus 6 10, plus 2 12. So here will be only 1, 3p1.
because you can see now here the last electron enters in the p subshell. So जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स है इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा? इन द p subshell. So they are in the p block. If you see here n, यहाँ पे क्या है? n is principal quantum number. So if you see ग्रुप वाइज अगर देखा जाए तो इनका आएगा ns2 and np. यस, np की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी 13 वाले ग्रुप वाले एलिमेंट्स है तो इनका आएगा ns2 and np. यस 1. ठीक है. अगर हम बात करते हैं सिलिकॉन की तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14. सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p. यस, क्या आएगा? 2 + 2 is 4 + 6 is 10 + 2 12. नाउ 3p2 will come. सो यहाँ पे देखिए, अगर आप देखोगे यहाँ पे 14 के लिए क्या आएगा? फॉर द ग्रुप 14 एलिमेंट्स. सो आई विल राइट द कॉन्फ़िगरेशन हियर. यस, इनका क्या आएगा? इनका आएगा ns2 and np2 as well. ठीक उसी तरीके से इनका आएगा ns2 np3. जो यहाँ पे एलिमेंट्स है ग्रुप 16 वाले, इनका आएगा ns2 np. यस 4. इनका आएगा ns2. I am telling you about the 17 group. इनका आएगा ns2 and np5. और जो भी है नोबल गैसेस एक्सेप्ट हेलियम, हेलियम इज एक्सेप्शनल. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन की, तो इनका आएगा ns2 and np6. So if you see for p block as whole, ns2 and np is from 1 to 6. ये आएगा इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बोला कि हेलियम जो है, हेलियम इज एक्चुअली, इफ यू सी, इसका आउटर मोस्ट जो है इट्स अ फर्स्ट शेल ओनली. इट हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो हेलियम का जो होता है कॉन्फ़िगरेशन, इट्स ओनली 1s2. its electron enters in the s subshell, but still it is placed in the p block, because if you see their properties are just like the all their property of the noble gases या फिर inner gases. That's why helium is taken into noble gas elements. तो अगर देखा जाए तो इनके प्रॉपर्टी की जो होती है सिमिलरिटी, जैसे इनका पूरा होता है ऑक्टेट तो हेलियम का पूरा हुआ होता है डुप्लेट. That's why helium is taken in the group number 18, remember. So like this we can say here. Now all these elements are there. So if you see, we have taken electronic configuration of the first A group. I mean first group वो होता है ns1. second group का क्या होता है ns2. if you see properly, यहाँ पे जो है 13 ग्रुप, इनका है ns2 np1, इनका है ns2 s np2, इनका है ns2 np3, इनका है ns2 np4, and then the group 17 ns2 np5 and group 18 ns2 np6. helium is exception, but properties of helium are, I mean helium is also the noble gas. So in this way we can write the electronic configuration. Okay, अगर हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो मेरे ख्याल से पहले अभी मैं काम करता हूँ, इनको मैं भी निकाल लेता हूँ, मतलब I will rub all these things. Okay, I told you yesterday also, these are the lanthanides and the elements which are present at the bottom, they are known as actinides. अभी आपके पास पीरियड टेबल होगा, आप लोग ड्रॉ करके रखो क्योंकि अभी मैं इसको मिटाऊंगा. So I will need this board to be properly clean. Okay, to explain the next topics. So first of all I will rub this and you kindly note down all these things properly. Now let's see general outer electronic configuration in groups 1 to 3 and from groups 13 to 18. तो ये यहाँ पे मैंने लिखे हैं ग्रुप नंबर्स 1 2 3
then 13, 14, 15, 16, 17 and 18. You know that ग्रुप नंबर 1 की अगर हम बात करें तो अभी मालूम हो गया आपको कि दे हैव जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS1. ठीक है, जो भी है अभी आपको पता है कि अभी हमने एग्जांपल देखे सोडियम का एंड देन पोटेशियम का, लिथियम का. सो दे हैव जनरल कॉन्फ़िगरेशन एज NS1 ओनली. तो ग्रुप नंबर 2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं दे हैव NS2. Obviously you can take the example of magnesium. Magnesium का एटॉमिक नंबर मालूम है कितना है? 12 है. So here 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. So if you see here it's a nothing but what is the outermost shell here? 3s2. ठीक है. In case of potassium, if you take here potassium, or you know that in case of potassium there is a 19. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s. Yes, there will be 3s2 because there are 4 shells ना. तो यहाँ पे आएगा 3s2, then 3p, yes, 6 and then 4s1. Remember I told you orbit number जो भी होता है, orbit number indicates the number of shells present. I mean principal quantum number. पोटेशियम का ऑर्बिट नंबर अगर आप देखोगे, I mean पीरियड नंबर, पोटेशियम का जो पीरियड नंबर है वो है 4. If you see here there are 4 orbits. अगर पोटेशियम के नीचे जो आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यू नो, देन रूबिडियम का अगर है पीरियड नंबर 5, इसका मतलब उसके एटम में 5 शेल्स है. सो द नंबर ऑफ शेल्स इट विल इंडिकेट. तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे पोटेशियम का क्या आता है? देयर इज अ 4s1. सो देन द नेक्स्ट इज हियर ग्रुप नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं. नाउ अगर देखोगे आप यहाँ पे एग्जांपल स्कैंडियम का, यू नो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21. इन द प्रीवियस चैप्टर आई टोल्ड यू हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स. एटलीस्ट फॉर 30 यू हैव टू रिमेंबर फॉर दिस ईयर. ठीक है, बाद में हम जानेंगे 12th में कि हाउ टू रिमेंबर ऑल दैट, यू नो, रेस्ट वन. बट इट्स अ वेरी इजी इफ यू अप्लाई अबव प्रिंसिपल इन प्रॉपर मैनर. इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू. स्कैंडियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, then yes 4s1, 4s2 sorry, and then 3d1. You know that here 4s subshell will be filled first. यहाँ पे 4s पहले भरेगा, 3d बाद में भरेगा. 4s क्यों पहले भरेगा? I told you the n plus l rule. n प्लस एच जानते हैं ना आप लोग. तो 4s का एनर्जी कम होगा एंड देन 3d का एनर्जी ज्यादा होगा n प्लस एल रूल के हिसाब से. यू नो दैट डायग्राम आई हैव ड्रॉन इट फॉर द अबव प्रिंसिपल. तो पहले यहाँ पे 4s फिल करेंगे और बाद में आएगा 3d1. अगर कहाँ पे लिखा होता है कि 3s2, 3p6 पहले 3d1 एंड देन 4s2, यू नो इट आल्सो ओके, नो प्रॉब्लम. बट रिमेंबर वन थिंग हियर कि 4s पहले भरेगा. So for the convenience purpose, sometimes we can also write here 3d1 and then 4s2. It's also okay, no problem. अभी यहाँ पे है ये फर्स्ट शेल, ये है सेकंड शेल, थर्ड शेल की अगर देखोगे यहाँ पे देखो 2 plus 2 is 4 plus 6 10 12 18 18 plus 2 is 20 and is 21. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे प्रॉपरली तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल है वो कौन सा है? I mean it's n is equal to 4 here, so I will write here n is equal to 4. तो अगर n equal to 4 है तो यहाँ पे n minus 1 लिखना पड़ेगा 3d के लिए. So it's n minus 1. तो ये यहाँ पे आएगा n minus 1 d के पास है एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे n, I mean n मालूम है यहाँ पे क्या है? n is here outermost shell, you know highest shell. अगर यहाँ पे देखोगे तो 3d आएगा इनसाइड. So n minus 1 d1 and then n minus 1 d1 आएगा और यहाँ पे फिर बाद में आएगा ns2. So this is the general electronic configuration for group number 3 only. Yeah. So यहाँ पे आएगा yes n minus 1 d1 and then ns2. So this is very simple. In this way you have to remember n. What is n here? जो भी यहाँ पे
आउटर मोस्ट शेल होगा। अगर देखोगे तो 3D है, बट 3D इज इनसाइड। अगर हम बात करते हैं ऑर्बिट की, तो यहाँ पे फोर्थ ऑर्बिट विल बी आउटर ऑर्बिट। तो यहाँ पे n का वैल्यू हो गया 4, तो n माइनस 1 क्या हो गया, n मतलब है 4, 4 माइनस 1 इज 3, सो यहाँ पे आएगा 3D। तो 3D में कितने टर्म दिख रहे हैं आपको, 1, और कितने हैं ns में, ये है 2, सो ns2 एंड n माइनस 1 d1 यहाँ पे। देन नेक्स्ट वन हियर, इफ यू सी ग्रुप नंबर 13, if you see properly, aluminum is 13, so 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, then 3p1, so यहाँ पे क्या आएगा ns2 and np1, so it's very easy। यहाँ पे आएगा ns2 and np1, इनका आएगा ns2 and np2, इनका आएगा ns2 and np3, yes, for 16 ns2 and np4, for 17 ns2 and np5, and for 18 ns2 and np6। okay, accordingly you can give an example। अगर यहाँ पे लिखा है एल्यूमिनियम, then for here 14 element I will write silicon, 14 यहाँ पे आएगा तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। so you can see here ns2 np2, so in this manner you can write very easily। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, चलो हम लिखते हैं आर्गन का। आर्गन is 18, 1s2, yes, then 2s2, 2p6, 3s2, 3p will be 6, 2 plus 2 is 4, plus 6 is 10, plus 2 12, plus 6 is 18। so इस तरीके से, तो ये यहाँ पे हमने लिखा है आर्गन का। so all the यहाँ पे हमने लिखा है ग्रुप नंबर 18 के बारे में, ये है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो इन दिस मैनर यू हैव टू रिमेंबर। ओके, अभी देखिए कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है, अभी स्कैंडियम का अगर हमको लिखने का है कॉन्फ़िगरेशन, तो स्कैंडियम के लिए यू नो दैट स्कैंडियम इज 21। तो अगर आप देखोगे प्रॉपरली यहां तक, एक सेकेंड मार्कर, यस, स्कैंडियम की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए यहां पे प्रॉपरली 2 plus 2 is 4, plus 6 is 10, plus 2 12, plus 6 18, तो यहां तक हो गया आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन। तो स्कैंडियम को हम आर्गन इन द स्क्वायर ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। आगे यहां पे क्या है फिर, यस, यू कैन राइट हियर 3d1 and 4s2, इन दिस वे आल्सो वी कैन राइट फॉर स्कैंडियम। तो ये आर्गन का हमें लिखा, तो मतलब यहाँ पे 18 हो गए, 18 plus 2 is yes 20 plus 1 21। so in this manner also sometime electronic configuration is written। ठीक है, so write down this one also। now let's see the electronic configuration of D and F block elements। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे D block elements का क्या रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो यू नो दैट D block element की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्म दो फॉर्म यहाँ पे ग्रुप नंबर यस 13 आई एम सॉरी 3 2 ग्रुप नंबर यस 12 तक के जितने भी एलिमेंट्स है they will come in the D block। so they generally have electronic configuration as ns0 to 2 and then n minus 1 D, yes, 1 to 10। so in this manner we can write the general electronic configuration of the D block element। if you see now starting from scandium, if you see the first here is you know that scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc। आपको तो पता है यहाँ पे, तो scandium, titanium, vanadium, then chromium, manganese, iron,
cobalt, nickel, copper and zinc. Atomic number is 21. Here will be 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. You know that I told you argon का अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो हमारा 18 तक का पूरा हो जाएगा. You know that. Then the next will be here n-1. अगर देखा जाए तो ये है पूरा का पूरा 3D सीरीज है. आपको याद होगा इन द आई थिंक इन द सेकंड लेक्चर आई टोल्ड यू व्हाट इज 3D सीरीज. तो ये आते हैं एलिमेंट्स ऑफ द 3D सीरीज. सो हियर आई विल राइट हियर 3D. यस, तो अगर पहले हम यहाँ पे लिखते हैं 4s की बात करते हैं तो 4s यहाँ पे फिल हो जाएगा. सो आई विल राइट हियर 4s2 बिकॉज एज पर द अबव प्रिंसिपल आई टोल्ड यू 4s का एनर्जी कम होता है तो यहाँ पे पहले फिल हो जाएगा. एंड देन 3D1 फॉर टिटेनियम, argon, then 4s2 and 3D2 we have to write. For vanadium, argon के हो गए 18 पूरे, फिर बाद में यहाँ पे 18 के बाद यहाँ पे है 20 and then 3D3. You know that chromium shows anomalous electronic configuration, and why I told you in the lecture of structure of atom, right? 4s1 and then 3D, yes, 5, then argon 4s2 and 3D5, argon 4s2 and 3D6. 18 plus 2 is, yes, 20 and 6 is 26. Argon 4s2 and 3D7. Argon 4s2 and 3D8. Argon 4s1 and 3D10. Remember, chromium and copper, I told you they are anomalous. Here will be argon, then yes, 4s2 and 3D, yes, 10 again. So यहाँ पे अगर हमने देखा प्रॉपरली, सो यहाँ पे एक्चुअली 0 लिखने के बजाय होना चाहिए 1 to 2, बट ये तो 3D सीरीज के लिए हुआ. फिलहाल बाकी के जो है सीरीज 4D सीरीज, तो ओवरऑल मिला के देखा जाए तो दैट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन, इट विल बी राइट. इफ यू सी, आई टोल्ड यू उसके बारे में मैंने बोला है आपको, क्रोमियम और कॉपर के बारे में कि कैसे आता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आई टोल्ड यू, यस. तो ये है इनके बारे में. अगर हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, F block elements. So you know that they include lanthanides and actinides. Actually lanthanum atomic number जिसका होता है yes 57, and then onwards lanthanum के जो भी आगे वाले होते हैं cerium, praseodymium, you know that 58 to 71, they are known as lanthanides because the first element is lanthanum, right? So they are called as lanthanides. अगर उनको टेबल के बीच में प्लेस किया होता तो जो सिमेट्री होता, सोचिए अगर पीरियड टेबल कितना बड़ा हो जाता, फिर वो ऐसे लंबा हो जाता. फिर बिकॉज अगर हम देखेंगे प्रॉपरली तो अभी अच्छा दिखता है पीरियड टेबल. इफ यू सी, इफ द लैंथनाइड्स आर आल्सो प्लेस्ड, देन द सिमेट्री ऑफ द पीरियड टेबल इट विल बी डिस्टर्ब. दैट्स व्हाई दे आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पीरियड टेबल. एंड द सेम मैनर, you know that actinides, the elements after actinium, they are known as actinides, which are, I told you, radioactive elements. Actually they are also, अभी यहाँ पे देखा जाए तो they are placed at the bottom. So both these lanthanides and actinides, they have general electronic configuration as, I will write here NS2. okay, यहाँ पे रहेगा NS2 पहले, then N-1 D, it will be 0 and 1, and then it will be N-2 F, okay, and it will be from 1 to 14. Remember, this is the general electronic configuration of the F block elements. यहाँ पे अगर देखा जाए तो F orbital, I mean F subshell, it consists of 7 orbitals.
So starting, you know that from 1 to 14 electrons will be filled here. Outermost electron will enter in the f subshell. That's why they are also known as f block elements. They includes lanthanides as well as actinides. So ये है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. लेकिन जैसे क्रोमियम और कॉपर में था कि देयर इज इट इज हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है, तो ये होता है स्टेबल, ये है कंप्लीटली फील्ड होता है. दैट्स व्हाई क्रोमियम एंड कॉपर शोज anomalous electronic configuration. In the same manner, some of the elements from the lanthanides, I think like erbium, yes, not erbium, it's europium, yes, europium का अगर देखा जाए तो it will show anomalous electronic configuration. The reason is same, half field and full field. But ये हम देखेंगे in the next lecture, in the next year, क्योंकि फिलहाल हमारे सिलेबस में वो नहीं है. But you just have to know, you must have idea regarding the electronic configuration of the f block elements, and this is nothing but general electronic configuration of the f block elements. Obviously यहाँ पे n क्या होगा, n is principal quantum number, or you can say here outermost shell, right? So in this way, now we have finished here the electronic configuration of all the 4 blocks. Okay, I think that you should write all these things properly in your notebook. That will be your notes. Okay, now here is question. How to predict period, group, block of the element. आपको कोई भी element दिया जाएगा with the atomic number, then you have to predict its period number, then the block to which it belongs, as well as group number. So here is the trick I will tell you. How to predict the period number. The principal quantum number of the valence shell represents the period to which an element belongs. The principal quantum, next second, just see, the principal quantum number of the valence shell represents the period to which an element belongs. Yes, I will tell you when I will say these 3 examples. We will see these 3 examples. तो यहाँ पे क्या रहेगा, the principal quantum number of the valence shell. Valence shell का मतलब जानते हैं आप लोग, outermost shell, that is called valence shell. और जो भी उसका होगा principal quantum number, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो यहाँ पे पता है हमको 3s1. सो 3s1 इज देयर, सो 3 इज देयर, इट्स आउटरमोस्ट शेल इज देयर, तो यहाँ पे 3 होगा उसका पीरियड नंबर. ठीक है. ब्लॉक, द सबशेल इन विच डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स. सी हियर, द सबशेल इन विच डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स. इफ यू सी फॉर स्कैंडियम, अभी हमने देखा था एग्जांपल स्कैंडियम का, तो पता है आपको कि स्कैंडियम में क्या था. स्कैंडियम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे है 21 एंड देन देयर इज 4s. पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर्गॉन को, आर्गॉन के हो जाएंगे 18 पूरे, मतलब नाउ स्कैंडियम विल हैव द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एज दैट ऑफ आर्गॉन एंड देन इट विल हैव 4s2 एंड 3d1. नाउ 3d1 यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इज नोन एज डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन. इट एंटर्स इन द डी सबशेल, तो यहाँ पे ये स्कैंडियम हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट. सो पीरियड नंबर और ब्लॉक को बहुत इजी है प्रेडिक्ट करना. अभी बात करेंगे ग्रुप नंबर की. हाउ टू प्रेडिक्ट द ग्रुप नंबर. अभी इसके लिए आपको पता है, आपको सामने लाना पड़ेगा द होल फॉर्मेट ऑफ द पीरियड टेबल. अभी यहाँ पे देखो एस ब्लॉक में क्या दिया है, नंबर ऑफ ग्रुप्स. अगर वो एलिमेंट एस ब्लॉक का है तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, नंबर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. फॉर एग्जाम्पल सोडियम की अगर हम बात करते हैं तो सोडियम, यू नो दैट इट इज हैविंग, सोडियम is 11 and you know that it's a 3s1. ये है इसका outermost electronic configuration. So
अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर, तो इसका है ग्रुप नंबर 1। अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम यहाँ पे देखा है, लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे लिखा कैल्शियम के बारे में, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, okay, and then 4s2, 2 plus 2 is 4 plus 6 10 plus 2 12 plus 6, yes, 18 plus 2 20. If you see it's a 4s2 and there is the presence of 2 valence electrons, so कैल्शियम का भी ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 2। लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाय होगा सिर्फ और सिर्फ एस ब्लॉक को, हा फक्त एस ब्लॉक साठीच आहे। नंबर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर पी ब्लॉक नंबर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू 2 plus 10 plus number of electrons present in P. For that, if you see the example of silicon, aluminium, sulfur, any, तो यहां पे अगर आप देखोगे P ब्लॉक का पोजीशन था, हमने यहां पे लिखा हुआ था, तो पहले क्या आते हैं, सबसे पहले ग्रुप 1 और 2, दो आते हैं ग्रुप, तो ये हमने 2 छोड़ दिए। आपको पता है फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 अगर आप देखोगे तो ये होते हैं 10। तो पहले आएंगे एस ब्लॉक, तो हमने ये 2 छोड़ दिए। फिर कौन से आएंगे, फिर आएंगे डी ब्लॉक, इसलिए हमने वो जो 10 है पहले 2, फिर वो 10 छोड़ दिए। अभी क्या बचता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द पी 2 plus 10 and then the number of electrons in the p subshell outermost valence, that is nothing but the group number for the p block element। मतलब I will tell you, चलो हम ये यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं हम मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम की अगर हम बात करेंगे, फॉर मैग्नीशियम 12, so you know that first of all write down the configuration 1s2 2s2 2p6 3s2, 2 plus 2 is 4 plus 6, yes, 10 plus 2 12। if you see it properly students, क्या आएगा इसका पीरियड नंबर, पीरियड नंबर बोलिए क्या आएगा, यस, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है, आउटर मोस्ट वाला 3, तो ये आएगा इसका, यस करेक्ट, ये है इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यू नो दैट इट्स अ थर्ड एंड इट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। नाउ अगर हम बात करते हैं ब्लॉक की, तो क्या है आएगा इसका ब्लॉक, इफ यू सी क्या लिखा है, द सबशेल इन विच डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स, कौन सा सबशेल है, ये है 3s, एस दिख रहा है ना आपको, तो ये हो गया s, तो ये है s ब्लॉक एलिमेंट। अगर हम बात करते हैं ग्रुप की, तो देखिए ग्रुप के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया था हमने, अगर वो है s ब्लॉक तो हमको क्या करना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखना है। कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 है, तो यहाँ पे हो गया ग्रुप नंबर 2। सो आई विल हियर राइट हियर ग्रुप नंबर एंड इट्स नथिंग बट इक्वल टू 2। सेकेंड वैनेडियम 23, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, yes, then 4s2 and 3d3। again tell me what is period number। अभी ये फिलहाल तो ये तो है डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक है कैसे देखिए, बिकॉज द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन द डी सबशेल, उसके लिए फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा है। ओके, तो पीरियड नंबर, फिर ये है ब्लॉक और फिर ये है ग्रुप नंबर। चलो पहले बात करते हैं हम क्या आएगा पीरियड नंबर। इफ यू सी पीरियड नंबर प्रॉपर्ली, क्या लिखा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल। वैलेंस शेल मतलब कौन सा होना चाहिए, आउटर मोस्ट शेल। कौन सा दिख रहा है आउटर मोस्ट शेल, यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे 3, बट हियर इज 4 इज द आउटर मोस्ट शेल। सो यहाँ पे पीरियड नंबर आएगा 4। ब्लॉक कौन सा आएगा, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द डी सब शेल, तो ये आएगा डी ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप नंबर की अगर हम बात करेंगे तो डी ब्लॉक के लिए जो लिखा है मैंने नीचे, ये है नंबर ऑफ ग्रुप का फॉर्मूला, आई मीन द फॉर्मूला टू प्रेडिक्ट द ग्रुप नंबर। सो 2 प्लस नंबर ऑफ n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स,
दो इसलिए छोड़े क्योंकि आपको पता है एस ब्लॉक के दो छोड़ दिए, फिर यहां से ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक पूरे के पूरे क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट से। तो क्या आएगा 2 प्लस नंबर ऑफ n माइनस 1, यहां पे n का वैल्यू क्या है 4, n माइनस 1 क्या हुआ 4 माइनस 1 3d, तो नंबर ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन कितने हुए देखिए। सो द ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 2 प्लस नंबर ऑफ n माइनस 1 डी इलेक्ट्रॉन, कितने तो दिख रहे हैं यहां पे 3, so 2 plus 3 is equal to 5, and if you see it properly you will see that vanadium is present in group number 5. check out, ऐसा ये फॉर्मूला यूज करके आप किसी भी एलिमेंट का पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर और ब्लॉक कर सकते हो प्रेडिक्ट। यूज दिस फॉर्मूला एंड यूज दिस ट्रिक। ठीक है, अभी हम बात करेंगे एंटीमनी की। You know that antimony का क्या दिखाया है यहाँ पे, antimony is nothing but having atomic number 51. So I will write here 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Okay, then 3d के बाद में I think you know that 2 plus 2 is 4 plus 6 10 plus 2 12, यहाँ पे दो है plus 2 12 plus 6 yes 18 plus 2 20 plus 10 कितने हो गए 30। देन 3d के बाद में यहाँ पे कौन से आएंगे 4s2 4p6 yes 4s2, ये डायग्राम अगर होता तो आराम से आता था वो 4p6 एंड देन हो गए कितने यहाँ भी यहाँ पे हो गए फिलहाल 32 हो गए 38 एंड देन 4d10 नाउ इट्स अ 48 एंड देन 5s2 and 5p3, 5s2 and 5p yes 3. Now very easy for antimony, if you see it properly क्या आएगा, I will write here this, I will write for I will write here क्या आएगा इसका पीरियड नंबर। अगर आप देखोगे तो सबसे आउटर मोस्ट शेल जो है पीरियड नंबर कि अगर हम बात करते तो आता है 5। ठीक है, ब्लॉक which block is there, yes the differentiating electron enters in the p sub shell, क्योंकि यहाँ पे ना ये है 5p3, it belongs to p block element। ठीक है ना, सबसे बाहर वाला ये आता है यस, यहाँ पे p में आएगा, it's a p block element। and then ग्रुप नंबर अगर p ब्लॉक होता है तो क्या है हमारे पास फॉर्मूला 2 plus 10 plus number of electrons in p, so I will write here 2 plus 10 and then p में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, so I will write here 2 plus 10 is 12 plus 3 is 15। check it out, antimony is present in group number yes 15, check it out and tell me what is the result। Okay, so in this way I think that you should use this formula for various elements। let me see the time first of all। okay, time is over क्योंकि बाकी का हम लोग देखेंगे in the next lecture। I think that you should use these tricks again and again, use for different elements and tell me how it works। okay, बाकी का हम लोग देखेंगे next lecture में। till then take care and bye।